CBSE Mathematics Class 11th Chapter 7 Exercise 7.3 Question number 1. How many three-digit numbers can be formed by using the digit 1 to 9 if no digit is repeated? देखिए इस क्वेश्चन में बताया है कि 1 से लेकर 9 तक के डिजिट दिए हुए हैं और हमारे को 3 डिजिट के नंबर तैयार करने हैं और नंबर डिजिट को भी रिपीटेड नहीं होना चाहिए इफ नो डिजिट इज रिपीटेड. सो n इज हियर 9, r 3 यूजिंग द फार्मूला npr means n factorial upon n minus r factorial. So 9 factorial upon 9 minus 3 factorial. After solving, you see 9 into 8 into 7 into 6 factorial upon 6 factorial. 6 factorial and 6 factorial will be cancelled. So we will get 9 into 8 into 7, that will be equal to 504, and it will be the answer of question number 1. Now come to the question number 2. How many 4-digit numbers are there with no digit repeated? अब देखिए 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट दिए हुए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So here n is 10, r is 4. अब देखिए 4 डिजिट के नंबर शुरू होंगे तो 1, 10, 100, 1000. So in order to fill this place means 1000 प्लेस को भरने के लिए हम 0 नहीं रख सकते हैं. We can't place 0 here, otherwise it would be only 3 digits. So in order to make it 4 digit, we have to avoid 0. हम 0 को छोड़ करके दूसरे सभी डिजिट रखेंगे. So to fill this place, there are only 9 ways to fill up. So 1 to 9. So 0 can't be placed here. Now come to the 100 place. Remaining 9 digit can be placed. So again 9 ways. Now come to the 10th place, that is 8 ways are there, and 1 place can be filled by 7 ways. Therefore, the 4-digit number are by multiplication principle 9 into 9 into 8 into 7. So we will get ultimately 4536 numbers. And it will be the answer of this question. Now come to the question number 3. How many 3-digit even number can be made using the digit 1, 2, 3, 4, 6, 7 if no digit is repeated? अब देखिए यहाँ पर बोल दिया है 3 डिजिट इवन नंबर होना चाहिए. तो हम देखते हैं, देखिए 1, 10, 100 3 डिजिट के लिए हो गया. अब 1 प्लेस पर हमारे को कौन कौन से डिजिट रखने हैं? केवल इवन डिजिट रखना है, तो जिसमें से 2, 4, 6 मीन्स 1 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय आइदर 2 or 4 or 6 can only be placed here. Hence 3 ways are there. Now come to the 10th place. Any 1 digit out of remaining 5 digit can be placed, and 100 place any 1 digit of the remaining 4 digit can be placed. अब देखिए कितने डिजिट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 में से 3 वेज में यहाँ पर रख सकते हो. अभी जब ये 1 प्लेस भर गया है उसके बाद में 5 डिजिट से हम छूट गए हैं. 5 डिजिट आर रिमेनिंग देयर. तो एनी 1 डिजिट आउट ऑफ रिमेनिंग 5 डिजिट कैन बी प्लेस्ड मीन्स 10th प्लेस कैन बी फिल्ड विथ रिमेनिंग 5 डिजिट में से कोई भी डिजिट प्लेस किया था. सो 5 वेज आर देयर. And 100 place any 1 digit can out of remaining 4 digit can be placed. So the total 3-digit even number can be made will be equal to 3 into 5 into 4, that will be equal to 60, and it will be the answer of the question number 3. Now come to the question number 4. Find the number of 4-digit numbers that can be formed using the digit 1, 2, 3, 4, 5 if no digit is repeated. How many of these will be even? अब देखिए यहाँ पर क्या है,
फार्मूला कौन सा यूज किया हूँ मैंने, 5p4। डिजिट कितने हैं हमारे पास, 5 हैं। आउट ऑफ दैट 5 वी कैन चूज 4 डिजिट। सो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल को सॉल्व किया, 120 आ गया। अच्छा, इसमें क्या बोला फिर, 1000 प्लेस तक 4 डिजिट के लिए 2 ways are there, you see 2 and 4 can be placed here, even नंबर के लिए बोला है सेकेंड पार्ट में। क्वेश्चन देखो ये, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन नंबर, इवन कितने होंगे उसमें से हमें देखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको देखिए 1 प्लेस पर कितने होंगे, 2 नंबर भरे जा सकते हैं, दैट इज 2 and 4 मीन्स 2 ways आर देयर। 4 फॉर द 10 प्लेस 4 ways, 100 प्लेस के लिए 3 ways एंड 1000 प्लेस के लिए 2 ways। सो नंबर ऑफ इवन नंबर्स विल बी इक्वल टू 2 into 3 into 2, 3 into 4 into 2, that will be equal to 48. 48 will be the answer of this question. Now come to the next question, that is question number 5. A committee of 8 persons, in how many ways can we choose a chairman and vice chairman? Assuming one person cannot hold more than one position. अब 2 प्लेसेस है, देखिए एक चेयरमैन का है, एक वाइस चेयरमैन का है। तो चेयरमैन के लिए सेलेक्ट करने के लिए कितने वेज होंगे, 8 वेज होंगे। और वाइस चेयरमैन के सेलेक्ट करने के लिए कितने होंगे, 7 वेज। रिमेनिंग देखिए 8 पर्सन्स हैं, तो अगर एक प्लेस फिल्ड हो गया उसके बाद में 7 पर्सन्स आर लेफ्ट देयर। सो द 7 वेज आर देयर टू फिल अप द वाइस चेयरमैन। सो नंबर ऑफ वेज विल बी, जस्ट मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को लागू किया, 8 into 7 that will be equal to 56 and it will be the answer. Now come to the question number 6. Find n if n minus 1 p3 is to n p4 that is equal to 1:9. अब हमारे को ये चीज़ दिया हुआ है, हमारे को n वर्कआउट करना है। तो देखिए हमने फार्मूला लागू किया, n minus 1 फैक्टोरियल अपॉन n minus 1 minus 3 अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन n minus 4 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, n minus 1 फैक्टोरियल है और n minus 4, देखिए यहाँ पर n minus 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, एक सॉरी n minus 1 इधर है, n minus 1 अपॉन n minus 4 फैक्टोरियल, और ये जो इसका डिनोमिनेटर है दैट विल गो अप एज ए न्यूमरेटर पार्ट में, तो n minus 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। नीचे आ जाएगा हमारे पास n into n minus 1 फैक्टोरियल। अब देखिए ये n minus 1 फैक्टोरियल है, यहाँ पर आया, यहाँ पर है n minus 1 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, n minus 4 से कैंसिल हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विथ, देखिए यहाँ पर 1/n है, नीचे रखा हुआ है n, तो यहाँ पर ये n बच रहा है, रह जाएगा। सो 1/9 इज इक्वल टू 1/n इज इक्वल टू 1/9। सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको, n इज इक्वल टू 9। जो n फैक्टोरियल है, ये n फैक्टोरियल को मैंने इस तरह से लिख दिया, n इंटू n minus 1। वो किस लिए किया है, क्योंकि हमारे को ये कैंसिल करना था n minus 1 फैक्टोरियल को, तो हमने इस n फैक्टोरियल को मैंने इस तरह से लिख दिया है n इंटू n minus 1। क्यों, कोई भी जैसे डिजिट है, जैसे 5 फैक्टोरियल लिखना है तो हम क्या लिखते हैं, 5 into 4, हो सकता है 4 फैक्टोरियल पर रुक जाते हैं, तो 5 into 4 फैक्टोरियल। उसी तरह से यहाँ पर है n into n minus 1 फैक्टोरियल, तो n minus 1 फैक्टोरियल और n minus 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और वो n बचा रह गया यहाँ पर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड r
इफ फर्स्ट 5PR इज इक्वल टू 2 इंटू 6PR-1। अब देखिए यहाँ पर हमने 5PR को जल्दी सॉल्व किया है। 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। अब देखिए 6 को मैंने इस तरह से लिखा, 6 फैक्टोरियल को क्या इस तरह से लिख दिया है, 6 इंटू 6 माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस R प्लस 1। अब देखिए 6 माइनस, जैसे ही माइनस करेंगे तो माइनस R हो जाएगा और ये -1 जो है प्लस हो जाएगा, फैक्टोरियल हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर ये 5 फैक्टोरियल है और ये 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये एक लेफ्ट हैंड साइड में है, एक राइट हैंड साइड में है, इसके न्यूमरेटर में है, ये भी न्यूमरेटर में है, इसलिए मैंने इसको और इसको कैंसिल कर दिया है। सो वी आर लेफ्ट विथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 6 जा 12, 12 इंटू 5 माइनस R फैक्टोरियल, 12 इंटू 5 माइनस R फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू, देखिए 1 और 6 प्लस हो गया तो 7 माइनस R फैक्टोरियल। अब 7 माइनस R फैक्टोरियल को हमने तोड़ दिया है, देखिए 7 माइनस R माइनस 1, दैट इज 7 माइनस R माइनस 1 फैक्टोरियल। सो 12 यहाँ पर रह जाएगा, देखिए 5 माइनस R आ जाएगा, यहाँ से 7 में से माइनस वन कम करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस R फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये 5 माइनस R फैक्टोरियल और 5 माइनस R फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा इधर 12 इंटू इज इक्वल टू 7 इंटू 7 माइनस R, सेकेंड ब्रैकेट में 7 6 माइनस R, यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस R, और इसका दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 माइनस 13R प्लस R स्क्वायर। अब हमने इसको क्या किया, हर एक चीज़ को एक साइड में कर दिया है। सो R स्क्वायर माइनस 13R प्लस 30 इज इक्वल टू 0। R स्क्वायर, अब इसको मैंने स्प्लिट कर दिया मिडिल टर्म को, R स्क्वायर माइनस 10R माइनस 3R प्लस 30। देखिए -10 इंटू -3 तो प्लस का 30 आ जाएगा, -10 और -3 को प्लस करोगे 13 आ जाएगा, माइनस का 13 आ जाएगा। हमने फैक्टराइज कर दिया, फैक्टराइज करने पर क्या मिला, R माइनस 3 एंड सेकेंड ब्रैकेट में R माइनस 10, that will be equal to 0, R is equal to 3 and R is equal to 10. अब reject as it cannot be more than n। जो फैक्टर n जो R जो है, n हमारा दिया हुआ है यहाँ पर 5, तो 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर R जो 10 आया है इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे, R is equal to 3. So this will be the value of R. Now come to the second part of it, that is 5PR is equal to 6PR minus 1, 6PR minus सॉल्व कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अब इसको मैंने इस तरह से लिख दिया है, 6 फैक्टोरियल लिखने की जगह पर मैंने क्या लिखा है, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस R माइनस 1 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ से 5 फैक्टोरियल था, इधर 5 फैक्टोरियल था, इसको मैंने कैंसिल कर दिया है, ऊपर से कैंसिल कर दिया मैंने, 5 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। तो हमारे को क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैं इसको, तो 6 इंटू 5 माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 माइनस R फैक्टोरियल, 7 माइनस R फैक्टोरियल, एंड इसको फर्दर सॉल्व किया। देखिए 6 इंटू 5 माइनस R फैक्टोरियल, यहाँ पर मैंने इसको और एलाबोरेट कर दिया है, 7 माइनस R, 7 माइनस R माइनस 1, 7 माइनस R माइनस 1 और फैक्टोरियल कर दिया लास्ट में। सो दिस विल बी इक्वल टू 5 माइनस R फैक्टोरियल। अब ये 5 माइनस R फैक्टोरियल के बराबर है, इसलिए मैंने इसको और इससे कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा है, 6 इज इक्वल टू
7 माइनस आर, सेकेंड ब्रैकेट में 6 माइनस आर। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 42 माइनस 13 आर प्लस आर स्क्वायर। अब इसको हमने ट्रांसपोज करके एक इक्वेशन बना लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 36 इज इक्वल टू 0। सो आर स्क्वायर माइनस 9 आर माइनस 4 आर प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा वो बीच में स्प्लिट करके बना दिया। अब आ जाइए इसको कैसे फैक्टराइज किया है देखा जाए। देखिए आर हमने बाहर ले लिया है, आर माइनस 9, दूसरे ब्रैकेट में माइनस 4 मैंने बाहर लिया है, आर माइनस 9 ब्रैकेट के अंदर आर माइनस 9 बाहर लिया, आर माइनस 4, दो फैक्टर बना, आर इज इक्वल टू 9, आर इज इक्वल टू 4। आर इज इक्वल टू 9 हम रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज आर इज नॉट इक्वल टू 9 एज इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन n, hence r is equal to 4 will be the correct answer. Now come to the question number 8. How many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation using each letter exactly once? हर एक लेटर को एक ही बार इस्तेमाल करना है। अब देखिए 8p8, इसमें देखिए कोई रिपीटिशन नहीं है। देखिए EQATION, हर एक लेटर डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। सो 8p8 that will be equal to 8 factorial and it will be equal to 4 into 40,320 अरेंजमेंट्स होगा इसके। इसको भी देख लीजिए जो कैसे मैंने लिखा है। 8 ये प्लेस 8 से नंबर से भरे जा से 8 7 6 5 4 3 2 1। सो जस्ट मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को लागू किया गया है और इसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिख दिया है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी वर्ड्स विथ आर विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे, assuming that no letter is repeated if 4 letters are used at a time. अब 4 letters are used at a time means 6p4. So 6 factorial upon 6 minus 4 factorial को सॉल्व किया तो देखिए ये 2 से कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, इसका आंसर आ गया 360। ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, हर एक लेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो उस समय कितने अरेंजमेंट होंगे उनके टोटल? देखिए 6p6 का मतलब हो गया 6 फैक्टोरियल, दैट विल बी इक्वल टू 720। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल। अब देखिए फर्स्ट लेटर वॉवेल है कि कितने वॉवेल हैं पहले तो देखिए। जो फर्स्ट लेटर है वो वॉवेल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो हमारे पास 2 वॉवेल है, एक है ए और एक है ओ। तो ए के साथ में हमने इस्तेमाल किया और 6 लेटर्स हैं टोटल। तो एक तो ए इस्तेमाल हो गया, बचा हुआ 5 लेटर्स कैन बी यूज्ड हियर 4 ways, 3 ways. This place can be filled in 3 ways. This place can be filled in 2 ways, and the last one can be filled in 1 way. So it is just equal to 5 factorial. Now come to the second situation, that when O is filled, O can be also placed here. So again the same situation will be there. 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that will be equal to 5 factorial. So twice into 5 factorial, that will be equal to 2 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, and it will be equal to total, that will be equal to 240, and 240 will be the answer of this question. Now come to the question number 10. In how many of the distinct permutation, means just arrangement of the letters in Mississippi, do the 4 I's not come together? अब बोला है कि इसमें देखिए 4 आइज है और दैट शुड नॉट कम टुगेदर, एक साथ नहीं आना चाहिए। द अकरेंस ऑफ द लेटर मैंने पहले लिखा है,
M कितने बार आया है 1 टाइम्स, I कितने बार आया है 4 टाइम्स, S कितने बार आया है 4 टाइम्स, P कितने बार आया है 2 टाइम्स। अब ये जो लेटर्स बार बार अकरिंग है उनके जो मैंने लिखा फ्रीक्वेंसी, वो इसलिए लिखा है कि अगर आप इसको इस्तेमाल करोगे तो डुप्लीकेसी हो जाएगा। तब डुप्लीकेसी को अवॉइड करने के लिए जिसके लिए फार्मूला है अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 4। आप अपने बुक का अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 4 बुक का थ्योरम नंबर 4 को देखिएगा, उसमें डिटेल में दिया हुआ है n फैक्टोरियल अपॉन p1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p2 फैक्टोरियल एंड p के डैश डैश एंड p के फैक्टोरियल। सेम फार्मूले को मैंने लागू किया है। सो 11 लेटर्स हैं, सो 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मैंने इसको लागू किया है। अब देखिए यहाँ पर 11 है, 11 को 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया है। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एक को मैंने स्प्लिट कर दिया, जो 4 फैक्टोरियल एक तो मैंने एज इट इज रखा क्योंकि हमारे को यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा था, और एक को अलग अलग काटना था, इसलिए मैंने इसको स्प्लिट कर दिया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल। अब देखिए मैंने इसे कैंसिल कर दिया, 4 से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और 4 टू जा 8 को कैंसिल कर दिया, 3 टू जा 6 को कैंसिल कर दिया। सो रिमेनिंग डिजिट क्या बच गया हमारे पास, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5 and it will be equal to 34,650. Now when 4 i's come together, जब 4 i's एक साथ रख देंगे आप, एज्यूम टू बी 1 लेटर, इसको पूरे को क्या मान लो एक लेटर है कोई, और क्या है रिमेनिंग 7 लेटर्स। अब 4 ये है और 7 ये, टोटल मिलाकर के 11 लेटर्स है। देखिए टोटल लेटर्स कितने हैं, 11 लेटर्स हैं। तो हमने क्या किया है, 4 आइज को एक जगह रख दिया है, रिमेनिंग 7 लेटर्स, दैट इज टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हो जाएगा 1 + 7 दैट इज इक्वल टू 8। सो अगेन अकॉर्डिंग टू द थ्योरम नंबर 4 वी हैव, केवल 4 आइज ही हटा है। अब क्या है 4, उसमें एस है 2 पी है, वो उसी में है। सो वी हैव 8 फैक्टोरियल। क्यों 8 हो गया, क्योंकि टोटल आइज को मैंने 1 मान लिया है, और रिमेनिंग लेटर कितने हैं 7, और उस 7 में यस जो है 4 टाइम्स आया है, और पी कितने बार आया है 2 टाइम्स आया है। तो हमने क्या किया है 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब देखिए ये कैंसिल किया, सॉल्व किया इसको, एंड द रिजल्ट विल बी 840। नाउ 4 आइज डू नॉट कम टुगेदर। अब बोला है कि 4 आइज डू नॉट कम टुगेदर, तो पहले हमने सॉल्व किया था आई को अलग अलग करके, तो 34,650 आया था, उसमें से हमने क्या कर दिया 840 माइनस कर दिया। पहले हमने क्या किया 4 आइज को एक साथ रख लिया। अब दूसरी बार सिचुएशन में हमारे को मदद किया, जैसे बोलते हैं कि टोटल फ्रीक्वेंट होता है, वहाँ पर हम माइनस कर देते हैं 1 से लेकर के। प्रोबेबिलिटी में देखा हो आपने कि किसी चीज़ का अकरेंस है, मान लीजिए 3/4, तो 1 - 3/4 कर देते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर है व्हेन 4 आइज डू नॉट कम टुगेदर, पहले मैंने निकाला है कि 4 आइज कम टुगेदर, तो 4 आइज डू नॉट कम टुगेदर का निकालने के लिए हमें क्या होगा 34,650 minus 840 and it will be equal to 33,810 and it will be the answer. Now come to the question number 11. In how many ways can the letter of the word permutations be arranged if the words start with P and end with S? Second है vowels are all together. थर्ड सिचुएशन है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S. अकरेंस ऑफ द लेटर्स, अब अकरेंस ऑफ द लेटर हम चेक करते हैं जरा। P कितने बार आया 1, E कितने बार 1, R कितने बार 1, M कितने बार आया 1।
टोटल कितना है ये 4, और UTION, तो देखिए U कितने बार आया है 1, T कितने बार आया है 2 बार, I 1 बार, N 1 बार, टोटल है ये 5। अभी देखिए AOS ये है A 1 टाइम्स, O 1 टाइम्स, S 1 टाइम। अब नंबर ऑफ वॉवेल्स कौन कौन से हैं? AEIOU 5 वॉवेल्स हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। वर्ड्स स्टार्ट विथ P एंड एंड विथ S। द वर्ड स्टार्ट विथ P एंड एंड विथ S। अब देखिए 10 लेटर्स तो यहाँ पर भरे जा सकते हैं, टोटल अरेंजमेंट में दिखाने के लिए बता रहा हूँ। तो P तो स्टार्ट हुआ, S पर आकर के एंड हो गया। अब बीच में कितने लेटर्स आ जाएंगे टोटल? देखिए टोटल लेटर कितने? 5 + 4 9, 9 + 3 12। अब 12 में से हमने क्या किया? P को फिक्स कर दिया, S को फिक्स कर दिया। तो टोटल अरेंजमेंट हो जाएगा आपका 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल क्या? रिमेनिंग 10 लेटर्स थे, उसमें से रिपीटिशन कितना है? T जो है 2 बार आया है। तो अगर T का जो प्लेस है एक ही बार हो, मतलब डबल डुप्लीकेट हो जाएगा। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द डुप्लीकेसी आई हैव डिवाइडेड इट बाई 2 फैक्टोरियल। सो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व किया तो आपको 18,14,400 will be the answer. Now come to the vowels are all together. Vowels जो हैं सभी के सभी एक जगह आ गए एज वन। देखिए AEIOU मैंने एज ए वन एज ए ट्रीट किया मैंने। अब रिमेनिंग कितने? ये 5 ये है और 7 ये है, रिमेनिंग 7 लेटर्स। द टोटल हो जाएगा यहाँ पर 1 + 7। देखिए टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा? 1 + 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 × 1। इसको फर्दर सॉल्व किया तो 20,160 हेंस द टोटल अरेंजमेंट। अब देखिए ये जो है टोटल अरेंजमेंट तो ये हो गया, लेकिन टोटल अरेंजमेंट लेने के लिए ये जो वॉवेल है हमने, तो ये आपस में भी इंटरचेंज कर सकते हैं प्लेस। यानी दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, दिस प्लेस कैन बी ऑल्सो फिल्ड इन 4 वेज, इन दिस वे तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब 5 फैक्टोरियल होने के कारण हेंस द टोटल अरेंजमेंट विल बी इक्वल टू 20,160 × 5 फैक्टोरियल। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर पता चला कि ये कितना आ जाएगा? 24,19,200 will be the answer. Now come to the third part. There are always 4 letters between P and S. अब देखिए 4 लेटर्स होने चाहिए P और S के बीच में। अब देखते हैं कि टोटल प्लेस कितने हैं हमारे। 12 प्लेसेस है। अब देखिए हम पहले P1 को यहाँ पर रखते हैं, तो उसके बाद प्लेस को छोड़िए, कितने प्लेस छोड़ना है? 4 प्लेस, 1 2 3 4, तो S आ जाएगा। तो एक P1 का प्लेस हो गया, S1 का प्लेस हो गया। अब P1 का प्लेस अब P2 पर आ गया। P कहाँ पर आ गया? P2 पर। तो S2 कहाँ? यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से हमने P3 इधर आया तो S3 इधर चला जाएगा, P4 इधर आया तो S4 इधर आ जाएगा, P5 इधर आया तो S5 इधर आएगा, P6 इधर आएगा तो S6 यहाँ पर आएगा, P7 इधर आएगा तो उसके बीच में 4 का गैप होना चाहिए तो S7 इधर आएगा। तो 7 केसेस आर देयर, मीन्स P can be placed at 7 places, S can also be placed at 7 places। अब अभी इसी को हम क्या करते हैं कि S को इधर कर देते हैं। ऑन इंटरचेंजिंग द प्लेसेस ऑफ P एंड S वी हैव, अब S1 शुरू में आ गया, S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 यहाँ तक आएगा। अब P1 P2 P3 ऐसे, तो 7 केसेस इसके हो गए। तो टोटल different places of P and S as well as S and P,
देखिए P and S as well as S and P will be 14. So the arrangement of the 10 letters is equal to 10 factorial upon 2 factorial. Total arrangement will be equal to 10 factorial upon 2 factorial into 14, and it will be equal to 25,40,1600.